અરિહંતરે પ્યારા પદો નવકારના પ્યારું હતું પ્રભુના મને પ્યારા જીવો સંસારના પ્યારી હતી પ્રભુ ભક્તિને પ્યારી હતી નિજ સાધના કલા પૂર્ણ સુરી ગુરુ ચરણમાં હોજો સદા મુજ વંદના કલા પૂર્ણ સુરી ગુરુ ચરણમાં હોજો સદા મુજ વંદના. મારા પરિવાર ઉપર જેમની સતત કૃપા વરસી રહી છે એવા 23મા તીર્થંકર શ્રી શંકેશ્વર પાર્શ્વનાથાય નમો નમઃ. બાલ બ્રહ્મચારી ગિરનાર મંડન શ્રી નિમિનાથ દાદાનો જય હો જય હો. પાપીને પાવન કરનારા પવિત્રતાનો પાવર હાઉસ નવકાર મંત્રોના પરમ આરાધક અજાત શત્રુ અધ્યાત્મ યોગી પરમ પૂજ્ય આચાર્ય દેવ શ્રીમદ વિજય કલા પૂર્ણ સુરજી મહારાજના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. શાંત સ્વભાવી સરળ સ્વભાવી સૌમ્ય સ્વભાવી પ્રશાંત મૂર્તિ પવિત્રતાનો મહાસાગર મધુરભાષી પરમ પૂજ્ય આચાર્ય દેવ શ્રીમદ વિજય કલા પ્રભુશ્રીજી મહારાજના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. સત્વ અને વૈરાગ્યનો ક્યારેય નથી થતો ડાઉનફોલ. આચાર્યને પ્રવૃત્તિના જેવો છે વર્ષ ઉપર મોલ. જેમને મિસ નહીં થવા દીધું મારા સંયમનો કોલ એવા પરમ પૂજ્ય વર્તમાન કચ્છાધિપતિ કલ્પતરુ શ્રીજી મહારાજના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. સત્વ અને વૈરાગ્યનો ક્યારેય થતો ડાઉનફોલ. જેમના વિશાળ ઋતુપૂર્વમાં છે અને કોના સંયમ ટ્રી એવા પરમ પૂજ્ય મુક્તિ પુની ચંદ્રસૂરજી મહારાજના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. પોઝિટિવ પર્સનાલિટી માતાની જેમ સંભાળ લેનારા જેના વાત્સલ્યનો નથી કોઈ પાર. ઓલ ઇન વન હોલ એન્ડ સેલ માતૃ હૃદય પરમ પૂજ્ય દિવ્ય ગુણાશ્રીજી મહારાજના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. જ્યાં જ્યાં હું અટકી છું ત્યાં મને સાથ આપનારા, જ્યાં મારા દોષો દેખાય તે દોષને ડિલીટ કરીને ગુરુને એડ કરનારા એવા પરમ પૂજ્ય દિવ્યલોચના શ્રીજી મહારાજના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. મારી પ્યારી ગુરુમાં, મારી વાલી ગુરુમાં, મારી માસીમા સર જેમણે મને સેમની ટ્રેનિંગ આપી એવા પરમ પૂજ્ય દિવ્યાક્ષી શ્રીજી મહારાજના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. અહીંયા પર સ્ટેજ વડીલો સ્વજનો અને 25મા તીર્થંકર એવા શ્રી સકલ શ્રી સંઘને મારા પ્રણામ. સાધન વિનાને ચાલે તે સંસારી, સાધના વિનાને ચાલે તે સંયમી. ડ્રેસ અનેક પણ એડ્રેસ એક તે સંસારી, એડ્રેસ અનેક પણ ડ્રેસ એક તે સંયમી. પોતે ડૂબે ને બીજાને ડૂબાડે તે સંસારી, પોતે તરે ને બીજાને તરે તે संयमी. जैसे पढ़ने के लिए स्कूल इम्पोर्टेंट है, जैसे पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल इम्पोर्टेंट है, वैसे ही अनादिकाल से जो मेरी आत्मा रोगी बनी है उसको स्वस्थ करने के लिए गुरुवास है और गुरु वो मेरे डॉक्टर है. इसके लिए मैं संयम लेने जा रही हूँ. सब लोग मुझे पूछते हैं व्हाई सो अर्ली, इतना जल्दी क्या है? पर शास्त्रों में तो कहा गया है जो आवश्यक करने योग्य कार्य हो उसमें देरी नहीं करनी चाहिए. जैसे सांप ने अभी काटा और दवाई लेने का काम कल पर रखे तो चलेगा क्या? जैसे मनुष्य को अभी हार्ट अटैक आया हो और हॉस्पिटल जाने का काम कल पर रखे तो चलेगा क्या? नहीं ना. तो फिर द मैसेज इज क्लियर. टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाला काम को पहले प्रेफरेंस देना ही पड़ता है, नहीं तो फिर बड़ा लॉस फेस करने के लिए रेडी होना पड़ता है. देयर इज नो अदर ऑप्शन. तो પછી આવું મનુષ્ય ભાવ, જૈન કુલ, સંસ્કારી પરિવાર અને દેવગુરુ પર શ્રદ્ધા મળી તો પછી આવું ટોપ મોસ્ટ વાળું સંયમ જેને તો પ્રેફરન્સ આપવો જ જોઈએ ને. એવું શું તમને નથી લાગતું? मानव जीवन मेरा है बेस्ट, उसमें कर लो. आज का मानव
कलेक्शन, सुखों का सिलेक्शन और दुखों का रिजेक्शन। अगर कोई कर ले मानवों का सच्चा करेक्शन तो मिल जाएगा उसके मन का सच्चा इंस्पिरेशन। बाकी तो रोज नए नए के फंक्शन, नए नए जंक्शन। आज का मानव खुद ही बन गया चाणक्य का प्रोडक्शन। कीमत हो गई कम और नहीं ना कोई परफेक्शन। सिर्फ देव और गुरु कर सकते मानवों का सच्चा करेक्शन। अगर आपको कोई आईफोन या सैमसंग इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करने बोले तो कोई आईफोन को सिलेक्ट करेगा या तो फिर कोई सैमसंग को सिलेक्ट करेगा। कोई अगर आपको कोई मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करने बोले तो कोई मर्सिडीज को सिलेक्ट करेगा या तो फिर कोई बीएमडब्ल्यू को सिलेक्ट करेगा। बट मैं आप सबको ये पूछना चाहती हूँ कि हमें सुख या दुख इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो आप दुख को सिलेक्ट करोगे, सुख को सिलेक्ट करोगे ना। अभी सुख में भी दो ऑप्शन, एक प्योर एंड एक टेम्परेरी। तो कौन सा सुख? प्योर। अभी प्योर में भी दो चॉइस, एक परमानेंट एंड एक आर्टिफिशियल। परमानेंट तो प्योर परमानेंट सुख मुझे मिलने जा रहा है, तो फिर क्यों मैं इस आर्टिफिशियल एंड टेम्परेरी सुख के पीछे दौड़ूं? संसार का सुख यानी आर्टिफिशियल टेम्परेरी सुख होता है, जिसको हम सच्चा सुख मानते हैं। It is just imagination real happiness. It is not real happiness. यानी सुख की भ्रमना है। आज का मानव आज की फास्ट लाइफ में किसी को मनुष्य के शरीर में किसी को शरीर में से आता नहीं है, उसका दुख है। किसी को घर की तकलीफ है या तो फिर किसी को घर वाली की तकलीफ है, किसी को किसी को बाजार में नाम नहीं है उसका दुख है, किसी के पास नहीं है उसका दुख है, या तो फिर किसी के पास रुपया नहीं है उसका दुख है। परंतु किसी के पास रजोवरण नहीं है उसका दुख है खरा। बट हम सबको पता भी यही वो रजोवरण है जिसको पाने के लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत मेहनत की है। जैसे अहिमुद्दा मुनि ने 8 वर्ष की उम्र में ही रजोवरण प्राप्त करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया था। सुंदरी ने 60,000 आंबिल करके इतनी मेहनत करने के बाद उसको रजोवरण प्राप्त मिला था। वज्रकुमार स्वामी ने 3 वर्ष की उम्र में रजोवरण को प्राप्त किया था और अपनी मम्मी के सारे खिलौनों को ठुकरा दिया था। शालिभद्र ने 99 पेड़ियों का त्याग करके रजोवरण को प्राप्त किया था। यही वो रजोवरण है जो मुझे कल मिलने वाला है। काला कर्मों ने करवा हरण, स्वीकार करवा प्रभु नो शरण। रात दिवस रहे आत्मा उपकरण, गुरु गौतम नो छे जा आचरण। आर्या चंदन बाला नो छे जा स्मरण, पार उतारे संसार नंदन। एवो जे मारा वीरनो रजोहरण। यहाँ तक तो हमने सुन लिया, बट यहाँ तक पहुँचने वाले का उपकार मैं आज कैसे भूल सकती हूँ? हम हमेशा क्रेडिट जो स्टेज पर परफॉर्म करते हैं यानी जो संयम लेते हैं उसको ही देते हैं, पर यहाँ तक पहुँचने वालों का आज मैं कैसे भूल सकती हूँ? संस्कृत में दा धातु का अर्थ यानी देना होता है, यानी आपू होता है। दादा में तो 2 बार दादा आता है, यानी जो मम्मी पापा से जो ज्यादा लाड प्यार करते हैं वो दादा दादी होते हैं। दादा दादी की तो मैं बचपन से लाडती थी। जब तक दादी थी तब तक वो मुझे मास्टर के पास जाने नहीं देती थी, क्योंकि वो बोलती थी कि संयम जीवन में बहुत कष्ट है, उधर कुछ लीलोतरी वगैरह 48 मिनट्स के बाद ही खाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कष्ट है। पर आज अगर जो इस दुनिया में होते हैं तो आज मेरे इस स्टेप पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पर अपने दिव्य लोक से ऐसे आशीर्वाद बरसाना, ऐसे आशीर्वाद बरसाना कि मैं संयम जीवन में चांद लगा सकूं और जल्दी से जल्दी मोक्ष की ओर प्रयाण कर सकूं। बड़े पापा बड़ी मम्मी की तो मैं कल्पवृक्ष की उपमा दूं तो भी कम है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत लाड प्यार दिया है। कल्पवृक्ष के पास तो मांगना पड़ता है कि हे कल्पवृक्ष मुझे ये चीज चाहिए, पर बड़े पापा बड़ी मम्मी ने तो मुझे बिना मांगे सब कुछ ला कर दे दिया। बड़ी मम्मी ने बड़े पापा ने मुहूर्त से लेके दीक्षा तक की जितनी भी तैयारी थी उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। और बड़ी मम्मी तो अपने कभी कभी वाइनर के साथ भी आती थी वाइनर में, और वो
अकेले में रो भी लेती थी, है ना बड़ी मम्मी? पर अब रोना मत, क्योंकि मैं तो राइट मार्ग पे जा रही हूँ। बड़े पापा, आपने तो मेरी लास्ट विश पूरी कर दी, मुझे दीक्षा की परमिशन देना। थैंक यू सो मच। जीवनदाता माता पिता, जिन्होंने मुझे सिर्फ खिलाया पिलाया नहीं है, प्रभु के साथ मिलन भी कराया है। बचपन से मम्मी ने मुझे 7 इयर्स की एज में संस्कार देने के लिए वैकेशन टू वैकेशन भेजना चालू किया था। मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। सब अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को ड्राइंग क्लास, स्विमिंग क्लास, डांस क्लास, कराटे क्लास, ये सब क्लास लगाते हैं ताकि उनके बच्चे स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट बने। बट मेरे मम्मी पापा ने ये सब क्लास तो कराए, उसके अलावा मुझे गुरुकुलवास में भेजा, मुझे संस्कार देने के लिए भी भेजा। गुरुकुलवास में मैंने सामाई, पौषध, सूत्र, अर्थ, विहार ये सब सीखे। सब मम्मी तो अपने बच्चों का इस भाव संबंधी कल्याण करती है, बट मम्मी तूने तो मेरा भव का कल्याण कर दिया। छू तारा माँ, छू तुम्हारा माँ, साथ रहशु जीवन धारा माँ। जाओ वारी वारी, तू दुनिया मारी, तू सौती सारी, ओ मम्मी मारी। ए समय कधी ना मम्मी बुला तो, ए समय कधी ना मम्मी बुला तो, मने याद आवशे मारू सतवारो, मने याद आवशे अरे गमती वातो। पापा को तुम्हें मास्टर के पास जाओ, वही बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि पापा ने बोला कि वो मुझे सीए, इंजीनियरिंग ये सब बनाना चाहते थे। बट तो भी वो मुझे मेरी जिद के कारण स्पेशली मार्सेप के पास समर वैकेशन, विंटर वैकेशन स्पेशली छोड़ने आते थे। तो पापा जब मैं पापा को मैं जब मार्सेप के पास दीक्षा की परमिशन के लिए फ़ोन करती थी ना, तब वो है ना ऐसे हमेशा एक लाइन तो उनकी फिक्स ही थी कि ये अपनी लाइन नहीं है बेटा, यहाँ पे तो बहुत कष्ट है, तू कैसे सहन करेगी, तू कैसे करेगी, अभी भी टाइम है, आजा। बट पापा तभी मैंने आपको मना लिया, है ना। आज अगर जो आपको दुख लग रहा है तो आज आपको मेरे ऊपर मोह है, इसके लिए आपको दुख लग रहा है, पर आगे जाके फ्यूचर में आपको मेरे ऊपर प्राउड ही प्राउड फील होगा। पापा आपने मेरी लास्ट विश पूरी कर दी, वो थी दीक्षा की परमिशन देना। थैंक यू सो मच। तारा कुल मपिता मन जन्म मलोए मारो, आहो भाग्य से तारा खोले मारो शेर करो ए मारो, आहो भाग्य से। तारू नाम सदा दीपावे शबू, तारा सत्कारो ने पाड़ी शबू, तारी पक्षी ने अजवाली शबू, तारी आँखों ने आँखें शबू। हो भाई बहन का रिश्ता तो सबसे अनोखा होता है, राइट ना। स्पेशली हेतरी तांज के साथ तो मैंने बहुत लड़ाई झगड़ा किया है। बचपन से ही मुझे टीवी देखने का बहुत शौक था, तो मुझे टीवी के लिए, रिमोट के लिए हमने बहुत झगड़े किए, क्योंकि उनको देखना होता है ध्रुव तारे, अरे ध्रुव राधे और द लेजेंड ऑफ हनुमान, ये सब देखना लगता है। पर मुझे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर कल से तुम्हारे पास से कोई रिमोट नहीं मांगेगा और ना ही कल तुम्हारे पास से कोई झगड़ा करेगा, क्योंकि मैं तो चली सही पथ पर। अब मेरी यही इच्छा है कि तुम भी जल्दी यही सही मार्ग है और तुम भी जल्दी से जल्दी इस मार्ग पर आने की कोशिश करना। मेरे तो बड़े भैया
अक्षय भैया और पीयूष भैया को आज मैं कैसे भूल सकती हूँ। वो हमेशा मास्टर के पास जाना हो, मतलब 10 to बाय जाना लेना हो तो वो हमेशा रेडी होते थे, कभी ना नहीं बोलते। बस जब जब ये इतना ही बोलते थे कि तुम मास्टर के पास जा, पर दीक्षा का नाम मत लेना, क्योंकि हम यहाँ पे बैठ के साथ में धर्म करेंगे हम यहाँ पे साथ में बैठेंगे, सब प्रतिक्रमण वगैरह सब साथ में करेंगे, ऐसे वो हमेशा कहते थे। पर जब जब मैं मास्टर के पास थी ना, तब तो वो मुझे फोन करके पूछते थे कब लेने आऊँ, तुझे कब लेने आऊँ। पर अब कल से तुम लोग मुझे फोन करके ये नहीं पूछ सकते कि कल कब लेने आऊँ, क्योंकि अब तो मैं परमानेंटली गुरुकुलवास में जा रही हूँ। मेरी भी यही इच्छा है कि तुम लोग भी मेरे इस मार्ग पर आने की साथ देना, आप लोग भी इस मार्ग पर आने का भाव रखना। नाना ने तो कभी मेरी दीक्षा की परमिशन के लिए ना भी नहीं बोला, और नानी तो मम्मी की भी मम्मी, मतलब बहुत लाड प्यार। नाना नानी की जब मैं 2-3 इयर्स की थी ना, तब से अराउंड 5 इयर्स में नाना नानी के पास रही हुई हूँ। उन्होंने मुझे ना लाड़ प्यार दिया और उन्होंने मेरी पढ़ाई की भी बहुत ख्याल रखा। मामा मामी आपने तो मेरी अपनी बेटी की तरह ही रखा। मम्मी आप रोना मत, मैं आपको छोड़ के नहीं जाती। माँ आपने मुझे जीवन दिया, माँ आपने मुझे जन्म दिया, गुरु माँ मुझे जीवन देगी। माँ आपने मुझे भाग्यवती बनाया, गुरु माँ मुझे भगवान बनाएगी। माँ आपके खोले में मुझे किसी की डर नहीं, गुरु माँ के खोले में मुझे विगत की डर नहीं। मम्मी पापा अपने बहुत वर्ष पहले मेरे स्कूल में एडमिशन कराया था, अभी करा दो ना, पर इस बार संयम के स्कूल में, इस बार संयम जीवन। मम्मी पापा आपको वहाँ कोई यूनिफॉर्म, स्कूल बैग्स, बुक्स ये सब नहीं लाना पड़ेगा, क्योंकि उधर तो मेरी खुद गुरु मैया मेरी छाप करेगी। ऐसे मेरी परम पूज्य देवलोचना श्री जी मार्शल और परम पूज्य दिव्याक्षी श्री जी मार्शल, उन्होंने मुझे बहुत, मतलब उनके ऋण तो मैं कभी आदर नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे 4 प्रकरण, 3 भाष्य, ऐसे ग्रंथों का अर्थ सिखाया, ऐसे ग्रंथ कराए। उन्होंने मुझे विहार करना सिखाया, औषध लेना पालना सिखाया, सामायिक सिखाई। ये सब से लेके उन्होंने मुझे संयम की ट्रेनिंग भी सिखाई, संयम की ट्रेनिंग भी दी। उन्होंने मुझे वो हमेशा कहते थे कि मानव जीवन मिला है बेस्ट, उसमें कर लो संयम का टेस्ट। थोड़ी समय के है इस जन्म के गेस्ट, आहार पानी का न करना टेस्ट, तो ही तू बनेगी मोक्ष की गेस्ट। जब वीर परमात्मा का निर्वाण मस्तक में था, तब इंद्र महाराजा ने परमात्मा से विनती की थी कि हे प्रभु आप अपना आयुष्य थोड़ा ज्यादा कर दो, उसके कारण कोई भस्म ग्रह, और उसके कारण पूरा ग्रह जो होता है वो भस्म में आ जाता है, जैसे भस्म ग्रह, तो उसके कारण कोई आपत्ति, आरोग ये सब नहीं आएंगे। तब परमात्मा ने इंद्र महाराजा से कहा था कि आयुष्य को तो बढ़ाने की ताकत तीर्थंकर में भी नहीं होती, हम समय को कम या ज्यादा नहीं कर सकते, पर अपने जीवन के अंदर व्यावच, मासक को हराना, सामायिक करना, पोषक करना, तिथि के दिन एकादशना करना, रात को 24 रोज करना, ऐसे छोटे छोटे धर्म को साधना आराधना से अपना जीवन को धन्य बना सकता है। वैसे तो आज की फास्ट लाइफ में तो, आज की न्यू जनरेशन में तो टीवी, मोबाइल, लॉन्ग ड्राइव्स, बाहर जाके होटल में जाके नए नए रोज कोई आइटम नहीं आया हो तो उसके टेस्ट करना, बाहर जाके घूमना फिरना, मस्ती मजाक में, ये सब में अपनी पूरी लाइफ वेस्ट हो जाती है। वो कहते हैं युवा अवस्था में कमाई लेવું જોઈએ,
જેથી ગણપણમાં વાંધો ન આવે. આ અમૂલ્ય માનવ જીવનમાં ધર્મ કરી લેવું જોઈએ, જેથી ભવિષ્યમાં વાંધો ન આવે. जब फाइनल एग्जाम होती है तब अपने बच्चों को कभी बाहर घूमने लेने जाने देते हैं? अपने पेरेंट्स कभी बाहर जाने देते हैं? नहीं. कभी शॉप का सीजन होता है तब अपने भाइयों, अपने पापा कभी ऐसे पत्ते खेलने बाहर घूमने जाते हैं क्या? नहीं. तो फिर साधना करने के लिए मानव जीवन मिला है, उसको हम कैसे वेस्ट जाने दे सकते हैं? संयम जीवन राइट डिसीजन है ना साधना के लिए. વ્હીકલને છોડી વિહાર કરવા જઈ રહી છું. કલરફુલ કપડાને છોડી વ્હાઈટ ડ્રેસ ગન કરવા જઈ રહી છું. આ સ્મૂથ બેડને છોડી સંધારા ઉપર સૂવા જઈ રહી છું. પરફ્યુમને છોડી પ્યોર બનવા જઈ રહી છું. ઘરને છોડી વાશ્યામાં રહેવા જઈ રહી છું. સદગુરુની મળે જાશે એડવાઇસ, ગરમા ગરમ વાતો કરી જાય એકદમ આઈસ. ચક્રવર્તીને ઇન્ટ્રો કરતા જ જનીઓ છે પ્રાઇસ. એવું નિષ્પાપ સંયમ જીવન છે, વેરી નાઇસ. માનવ જીવન કરવું છે મારી સક્સેસ, સંયમની મેચમાં રમવી છે ચેસ. ગુરુ ગૌતમનું કહેવું છે બેસ, પરમ પદને પામવાનું એ છે મારું એડ્રેસ. કેટલા સમયથી આ સહયોગ પંથે પ્રયાણ કરવા માટે હું ક્યારથી તલસી રહી હતી. કેટલા સમયથી આ રજોહરણ મેળવવા માટે મારી આંખો ક્યારથી તડપતી રહી હતી. કેટલા સમયથી આ શ્રવણનો વેશ પહેરવા માટે હું ક્યારથી તલસી રહી હતી. બસ હવે મારું ઇલ્યુઝન પૂરું થયું. હું પત્તાની રજોને લઈને નૃત્ય કરીશ. પત્તાની રજોને લઈને નૃત્ય જ કરીશ. આ મારા જીવનમાં આવું ધન્ય દિવસ આવી ગયું. સ્નાપના વિરુદ્ધ બોલ્યો હતો કે છામ ટુકડા. મિલ જયો ગુરુવર્ણો સંગ ફળ્યો રે, પ્રભુતાનો પંથ મળ્યો. મિલ જયો ગુરુવર્ણો સંગ ફળ્યો રે, પ્રભુતાનો પંથ મળ્યો. જગત જીવોની હું રક્ષા કરું, જગત જીવોની હું રક્ષા કરું. સૌને સમાધિ કરું હું તો, મારે ધરવું છે સંયમનો વેશ. મારે ધરવું છે સંયમનો વેશ. હું તો ચાલી વીર પંથે જીતવાને મોહ પ્રદેશ. હું તો ચાલી વીર પંથે જીતવાને મોહ પ્રદેશ. સંયમની સફરમાં મકાય હરવા, ભલે પરીક્ષાઓ આવે હજાર. મારા અંતરના આનંદનો કોઈ નહીં પાર. મારા અંતરના આનંદનો કોઈ નહીં પાર. મેં તો છોડી દીધો સંસાર. મારી જીવનની નૈયા તો હતી મજદાર. હવે પહોંચીશ કિનારાની પાર. મારે કરવું છે સંયમનો વેશ. મારે ધરવું છે સંયમનો વેશ. હું તો ચાલી વીર પંથે જીતવાને મોહ પ્રદેશ. હું તો ચાલી વીર પંથે જીતવાને મોહ પ્રદેશ. મને કાંઈ બોલી ગયો હોય તો જામ ગભરાટ. આ 13 વર્ષના આ સંસારિક સફર, આ સંસારિક 13 વર્ષના સફરમાં કાંઈ પણ કોઈથી પણ મન વચન કાયાથી દુઃખ લાગ્યું હોય તો મિચ્છામિ દુક્કડમ, મિચ્છામિ દુક્કડમ, મિચ્છામિ દુક્કડમ. અને જે રમવું છે